मेरे नाल अज शामिल होए ने डॉक्टर स्वर्ण सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ UBC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਚੇਅਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਆਰਮਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ JNU ਦੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਸਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਡਜੰਕਟ ਫੈਲੋ ਨੇ ਦ ਚਾਰਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬੀਜਿੰਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਨਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਚਾਈਨਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੀਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੀਏ ਉਹ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਫੈਕਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਫੋਰਨ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀ ਡੇ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਬਿਜ਼ੀ ਵਿਦ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੁੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਝੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲਚੀਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਜ਼ ਅ ਸਕਾਲਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ, August 15th 1947 ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਬਣਨ ਦਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀਏ, ਦੀ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸੋ। ਸਮੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਚੀਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਚੀਲੇ ਹੋਣ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਲਚੀਲਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਰ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ आज़ाद हो गया भारत 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद जो अडॉप्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो 49 में हो गया, 26 नवंबर 49 में। फिर उसकी एनेक्टमेंट जो हुई वो 26 जनवरी 1950 में हुई। तो एक तो ये है कि उसको पूरी तरह से तैयार करने में, उसके हर पहलू पर बहस करने में इतना टाइम लगा, 3 साल लगे। पर ये एडॉप्शन और एनेक्टमेंट का जो दिलचस्प बीच में फासला है, वो शायद कई लोग ऐसे इतिहासकार मानते हैं कि 26 जनवरी 1929 को, नवंबर 1929 को लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जहाँ पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पास किया था कि उससे कम हम नहीं मानेंगे, पूरी आज़ादी चाहिए। पर वो उस वक्त बातचीत लगातार चल रही थी अंग्रेज़ों के साथ कि किस तरह की आज़ादी और कब मिलेगी। तो वो जब बातचीत थोड़ी सी नकारात्मक फेल हो गई एक तरह से, तो जनवरी 26 1930 में कांग्रेस ने अपने आप को कह दिया कि हम अपने आप को आज से आज़ाद मानेंगे। तो उस तारीख़ की जो अहमियत है, ख़ासियत है उसकी, उसको एक तरह से इतिहास के पन्नों में पूरा छाप देने की कोशिश शायद है। ये एनेक्टमेंट जो है वो थोड़ी देर बाद हुई, अडॉप्शन हो गया 26 नवंबर 1949 में, पर एनेक्टमेंट
26 जनवरी 1950 में हो और उसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के पद ओहदे पर चुने गए। वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उनको पहली बार चुना था, वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं चुना था, इलेक्शन कमीशन तो बना ही नहीं था उस वक्त। तो ठीक 2 साल बाद 1952 में फिर उनका पहला या कहें कि दूसरा फिर से इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का। वो एक अकेले राष्ट्रपति थे जो 12 साल से ऊपर भारत के राष्ट्रपति या 2 टर्म से ज़्यादा राष्ट्रपति रहे। तो ये इतिहास की जो पन्ने हैं उनको खंगालने खोलने से बड़ी दिलचस्प चीज़ें सामने आती हैं कि उन लीडर्स का किस तरह से सोच था कि जो पहली इतिहास की तिथियां हैं, तारीखें हैं, उनको आज़ाद भारत के इतिहास में किस तरह से जोड़ा जाए। लगभग 2 दशक पहले ये जो बातचीत हुई उसको 20 साल के बाद, मतलब 2 दशक पहले हुई तो 20 साल ही हो गए, तो 20 साल के बाद उसको लागू किया गया सही मायने में, ताकि उसको एक अहमियत दी जाए। इसीलिए आप देखो ना, वो गणतंत्र दिवस बन गया। फिर यदि वो कोई दूसरी तारीख होती तो फिर वो 26 जनवरी 1930 की बात जो थी वो शायद अलग तरह से देखी जाती, पर उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि आज से हम अपने आप को आज़ाद मानते हैं। उस तारीख को एक ख़ास जगह देने के लिए इतिहास में, भारत के आज़ादी के इतिहास में, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि शायद वो इसलिए वो डेट चुनी गई और इसीलिए वो डेट थी कि पहले राष्ट्रपति भी चुने गए उस दिन। डॉक्टर साहब, जो हम सुनते आए हैं या जिस तरह का मीडिया में भी बातें आती हैं, जब भी संविधान का जिक्र होता है, भारत के संविधान का जिक्र होता है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आता है कि वो इसके एक आर्किटेक्चर रहे हैं। उनके अलावा भी, क्योंकि जो भारत के संविधान की कॉपी मैंने देखी है, उसका प्रारूप मैंने देखा है, उसमें तो बहुत सारे उसके आर्किटेक्ट्स के सिग्नेचर्स हैं जो ओरिजिनल सिग्नेचर्स हैं। तो कितने लोगों ने इस संविधान में अपना योगदान दिया और बनाया, और कितना ये, नो डाउट इट्स वेरी, एज यू सेड, फ्लेक्सिबल की परिभाषा के ऊपर भी जाएंगे कि फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, क्या बिकॉज ऑफ द पेजेस इट्स फ्लेक्सिबल या देयर आर सर्टेन अदर फीचर्स ऑफ दैट। लेकिन इसके आर्किटेक्चर में कौन कौन से लोग जो शामिल हुए, किस तरह की पृष्ठभूमि के थे, किस तरह की बैकग्राउंड के थे वो? मैं अभी जैसे कह रहा था कि इतिहास के पन्ने खोले तो कई बड़ी दिलचस्प चीज़ें सामने आती हैं। क्या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में गॉड शब्द यूज करना चाहिए या क्या गांधी शब्द यूज करना चाहिए, इस पर भी बहस हुई कि किसका नाम लिखा जाए। हालांकि ना गॉड का नाम उसमें लिखा गया, ना गांधी का नाम लिखा गया। बहुत से लोगों ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरह से विरासत की कंटिन्यूटी है। वो उस वक्त जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको आगे बढ़ा के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो उन्होंने कहा कि ये तो ब्रिटिशर्स की एक तरह से धरोहर बन रही है, ये गांधीयन इसमें फिलॉसफी नहीं है। तो गांधी का, तो इस तरह से कई नाम बाद में भी सामने आए। तो मैं कहूँगा ये बड़प्पन भी है उस वक्त के बड़े बड़े नेताओं का कि एक दूसरे को वो सामने लाकर उनकी खासियत, उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको दर्ज कराने में वो पीछे जरा भी नहीं झिझकते थे। आपस में उनकी तालमेल कभी होती थी, कभी नहीं होती थी, पर जो आपस में प्यार, इज्जत और तालमेल था उनका, वो बड़ा गजब का था। तो हम अक्सर सुनते हैं कि बाबा साहब BR अम्बेडकर जो हैं वो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको मानते हैं। जाहिर है कि वो पहले कानून मंत्री थे भारत के और उस वक्त वो बहुत बड़े लीगल ल्यूमिनरी माने जाते थे उस वक्त के, और ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके चेयरमैन वो थे। तो उनका कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली बहुत ख़ास था, पर ऐसा नहीं कि दूसरों का कंट्रीब्यूशन नहीं था। दूसरों का भी कंट्रीब्यूशन था। उसमें कांग्रेस कमेटी की और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अपनी बहुत खास कुछ एक्सपर्ट्स कमेटी बनी हुई थी। उसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, या ये कहें कि जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और बहुत से लोग अलग अलग मामलों में उनकी बड़ी ख़ास धारणाएं थीं, जो मान्यताएं थीं उन लोगों की, उस पर वो अड़ जाते थे और वो उसको लेकर उसको या तो कॉन्स्टिट्यूशन में डालने में या ना डालने में वो पूरी बहस करते थे। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का उनमें जो नाम कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कहा कि जो हस्ताक्षर हुए उस वक्त, उसके अलावा मैं तो कहूँगा और भी कई लोगों का, क्योंकि ये जो पूरा ट्रांसफ़र ऑफ पावर की जो तरीका है अंग्रेज़ों का भारत को आज़ादी देने का, वो 1858 से शुरू हो जाता है। पहला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, वहाँ से लेकर 1909 के एक्ट को ले लें, 1919 के एक्ट को ले लें और 1935 के एक्ट को ले लें,
each of these were gradually evolution of what ultimately will become Constitution of India. तो उस वक्त क्या जो negotiations हो रही थी उसमें जो शिरकत कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका क्या योगदान है या नहीं, ये बहुत लंबे दौर की एक कहानी है। उसमें बहुत लोगों का उसमें योगदान है, उसमें अलग अलग योगदान है अलग अलग लोगों का। तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ नाम सामने उभर कर ज़्यादा सामने आ जाते हैं क्योंकि वो शायद उनको कुछ ओहदे मिल गए, उनको कुछ जिम्मेदारियां मिल गई, इसलिए उनकी जिम्मेदारियां हमें सामने नज़र आती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो सामने नहीं भी आए, उनके भी बड़े बड़े ख़ास मुझे लगता है उसमें योगदान रहे। और कुछ हद तक उसमें तो ब्रिटिश लोगों का भी योगदान रहा क्योंकि उन्होंने भी एक बातचीत करके ये सारे एक्ट बनाए और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना। और आखिरी बात इसमें ये जोड़ना ज़रूरी है कि जब बना कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो इससे पहले बने हुए थे उनका नज़रिया साम्राज्यवाद का था, कॉलोनी का नजरिया, कॉलोनाइजेशन और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसे बनाना है। जब भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसी को डेवलप करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है तो उसमें देखें वो दृष्टिकोण, जो दर्शन है, जो सोच है, जो फिलॉसफी है, वो बहुत अलग है। तो उस वक्त आप देखो कई बड़े नए हिस्से उसमें जोड़े जाते हैं, खासकर जो फंडामेंटल राइट्स जोड़े जाते हैं, जिससे हमें कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सी चीज़ें सीखी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसमें जोड़े जाते हैं जो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से सीखे। और बहुत सी चीज़ें उस वक्त देखें कि केवल 15 महिलाएं, करीब 299 जो डेलीगेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, केवल 15 उसमें महिलाएं थीं। और पहला जो सेंसस हुआ भारत में 1951 में, उसमें ये देखा गया कि केवल 7% से थोड़ा ऊपर एजुकेशन लेवल था महिलाओं का इंडिया में। आदमियों का, पुरुषों का करीब 24% के आसपास था। तो ये जो शोषण हुआ लोगों का, जो इनइक्वालिटी थी भारत में, उस वक्त जो भारत की हालत थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में नज़र नहीं आते थे वो। पर जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील करा गया, उसको संविधान बनाया गया, तो उसमें भारत की क्या ज़रूरतें हैं एज ए इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, उसकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं, कैसे वुमेन एम्पावरमेंट करना है, कैसे जाति प्रथा को ख़त्म करना है, कैसे अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है, ये नई चीज़ें उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ी। बट डॉक्टर साहब, मेरे को हमेशा एक बात की बहुत उत्सुकता रहती है, ऑलवेज आई फील वेरी क्यूरियस अबाउट दिस थिंग, कि जब अंग्रेज़ों ने 200 साल राज किया, जब उनका राज था, अगर उस टाइम पे कास्टिज़म चल रहा था तो उसको इंडिया के ऊपर क्यों मतलब एज अ इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है कि इंडियंस जो हैं वो कास्टिज़म में बिलीव करते थे, जबकि अगर अंग्रेज़ चाहते हो 200 साल में तो उस चीज़ को ख़त्म भी कर सकते थे। तो उस दौर में वो ख़त्म क्यों नहीं हो पाया? क्या अंग्रेज़ों की भी कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश या चाल या कुछ उनका लैक ऑफ विजन रहा? बहुत से अंग्रेज़ भारत में उस वक्त आए जब साम्राज्यवाद चल रहा था, कॉलोनाइजेशन था, जो भारत में सामाजिक सुधार करने की सोच रखते थे। उन्होंने कोशिशें भी की, बहुत सी चीज़ें हुई, पर जो गवर्नेंस मॉडल था कॉलोनियल गवर्नमेंट, उसका ज़्यादातर फोकस समाज सुधार में नहीं था, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन में था। और यहाँ से किस तरह से ब्रिटानिया को किस तरह से फ़ायदा होगा, उनको क्या यहाँ से मिल सकता है, इतनी बड़ी कॉलोनी उनके पास थी। अब देखें उस वक्त बर्मा भी इसी में शामिल था, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज जो हैं वो भी इसी में शामिल थे। तो ब्रिटिश इंडिया बहुत बड़ी कॉलोनी थी उनके लिए। तो उनका फोकस था कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनी रहे, और हम यहाँ से जितने भी स्रोत हैं, जितनी जहाँ खास चीज़ें हैं, उनको किस तरह से उसका फ़ायदा ब्रिटानिया को हो। तो समाज सुधार की जो सोच है वो तो तभी आती है जब भारत इंडिपेंडेंट होता है, जब हमारे अपने नेता जो लड़ रहे थे 200 साल से कि किस तरह से आज़ाद हो भारत, धीरे धीरे हर किसी का कंट्रीब्यूशन उसमें रहा, पर ये सोच जो थी कि अब हम भारत के अपने भविष्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो दो तरीके से अंग्रेज़ों ने अपना यहाँ दबदबा इतने लंबे दौर तक बनाए रखा। एक तो ये कि समाज सुधार पर उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की, और ना यहाँ की विकास की कोशिश की। बहुत से लोगों ने इतिहास में ये भी बताया कि वहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वो चाहे दादा भाई नारोजी से लेकर शशि थरूर तक अब पढ़ लें किताबों को, तो वो कहते हैं कि यहाँ की जो हथकरघा उद्योग था, जो यहाँ की खास कारीगर थे, उनको उन्होंने विकास नहीं होने दिया, अपना विकास होने दिया। और इसीलिए जो जाति प्रथा की आपने बात की, वो भी लागू रही। उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी कि हाँ जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए, ये एक बात। दूसरा, उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ को, भारत को भी लगातार ये कहा कि हम धीरे धीरे आपको आज़ादी की तरफ रास्ता दिखाएंगे, आप काबिल नहीं हो, आपको हम पहले काबिल बनाएंगे, फिर आपको आज़ादी देंगे। उससे क्या हुआ कि बड़ा
आक्रोश नहीं जमा भारत में। बहुत सी ऐसे जनसंख्या रही, लीडर रहे जो इसमें विश्वास करते थे कि हाँ अंग्रेज़ हमें धीरे धीरे आज़ाद कर देंगे, तो इसलिए उनको लंबी देर तक ये अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए मौका मिला। तो जब भारत आज़ाद होता है तो पूरा नया एक तरह से अध्याय शुरू होता है, नया चैप्टर शुरू होता है, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत अलग है एक तरह से। उसके पीछे जो सोच है, आप जिस प्रियम्बल की बात करते हैं, वो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहला प्रस्ताव वही था। उसमें उसको कहा गया था ऑब्जेक्टिव्स, के हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी का स्वरूप जो है बाद में प्रियम्बल की तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। डेफिनेटली प्रियम्बल और इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक से के बाद वापस आते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेने हैं, वापस आने हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੀਕਰ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਡਾਪਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ CKSP 600 AM ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ, ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ। CKSP 600 AM ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, UBC ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, JNU ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, और ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ कर रहे हैं। आजकल वैंकूवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे हम भारत के संविधान के बारे में। आपने बताया कि बहुत सारे आर्किटेक्ट इसके रहे, और प्रियम्बल के बारे में आपने बात कर ही रहे थे, तो हमारा ब्रेक का टाइम हो गया। इसके कुछ सेलिएंट फीचर की अगर बात की जाए, कौन कौन से प्रमुख इसके जो विशेषताएं हैं भारत के संविधान की, और ख़ास तौर से जैसे मैंने जिक्र किया कि अडॉप्शन वाले दिन, जिस दिन एक प्रोग्राम हुआ यहीं वैंकूवर में, बर्नबी में, तो मैंने सुना कि आप इसका कंपैरिजन भी कर रहे थे कनाडा के साथ। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी हमें अगर रोशनी आप डालें। थैंक यू। क्योंकि ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ थे, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੈਚੁਰਲੀ जहन चाहता है कि क्या सिमिलरिटी हो सकती है। तो सबसे पहले तो बोथ इंडिया एंड कनाडा वर फॉर्मर कॉलोनीज, और दोनों जगह वही तरीका ब्रिटानिया ने, मैंने जो कहा, अपनाया कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपको धीरे धीरे आज़ाद होने की सहूलियत होगी, या इजाज़त मिलेगी। तो ठीक जैसे भारत में एक के बाद एक एक्ट पास हुए, 1858 में वहाँ पास हुआ, 1868 में यहाँ एक्ट पास हुआ। उसमें मौलिक तौर पे ढांचे में कोई बड़ा फ़र्क नहीं था। जो तरीका था यहाँ की गवर्नेंस का कनाडा में या ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटानिया का तरीके एक जैसे ही थे। अब यहाँ के लोकल जो समाज है, यहाँ का जो संस्कृति है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसका तालमेल उस गवर्नेंस मॉडल से कैसा हुआ, उससे नतीजे जो हैं वो धीरे धीरे अलग निकले। सबसे पहले तो ये जैसे कि कनाडा में आज भी डोमिनियन स्टेटस है कनाडा का, सॉवरन आज भी ब्रिटिश सॉवरन है, आज चार्ल्स थर्ड हैं। जबकि भारत में तय हुआ कि नहीं, हम रिपब्लिक होंगे, हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होगा, राष्ट्रपति जिसको हम कहते हैं, वो भी भारत से ही चुना जाएगा, वो ब्रिटानिया का सॉवरन नहीं होगा। या दूसरे तरीके से देखें कि कनाडा में जैसे गवर्नेंस सिस्टम सिमिलर था, पर यहाँ कॉन्फेडरेशन हुई। जो यहाँ की प्रोविंसेस हैं उनकी बहुत अहमियत है, ताकत है उनकी, उनको कानून बनाने की, अपना गवर्नेंस का, उनको बहुत पावर्स हैं उनके पास। और फेडरल गवर्नमेंट है वो उतनी पावर नहीं है, उनके पास नहीं है। कुछ हद तक हैं, जैसे रक्षा नीति, विदेश नीति, ये हैं उनके पास, पर बहुत सी ज़्यादा ताकतें प्रोविंसेस के पास हैं। भारत में उससे अलग हुआ। भारत में फेडरेशन ही नहीं, हम उसको क्वाज़ाई फेडरेशन कहते हैं, जिसमें यूनियन ऑफ स्टेट शब्द इस्तेमाल हुआ है। मतलब यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, और कभी कभी तो हम उसको प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह देते हैं, कि वो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द सारी ताकत, जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है वो, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। तो ब्रिटानिया जो है वो यूनिटरी सिस्टम है, हमारा फेडरेशन है नहीं, यूनियन गवर्नमेंट के पास सारी ताकत है। तो गवर्नेंस जो इंस्टीट्यूशंस थी वो सोच ब्रिटानिया की ही थी, पर उसके नतीजे देखो दोनों तरफ थोड़े थोड़े अलग निकले हैं। तो इसीलिए आपने दूसरा सवाल ये पूछा कि आज जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की हैं वो खासियतें, या उसके ख़ास चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो हम अक्सर कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा या डिटेल्ड संविधान है। 1,50,000 अंग्रेज़ी के शब्द उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो
सबसे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन की उदाहरण दें तो वो 3800 शब्दों का है। तो इस तरह से एक तो सबसे बड़ा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए वो डिटेल्ड भी है, बहुत ज़्यादा विस्तृत तरीके से समझाया गया कि हर चीज़ को कैसे टैकल करना है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है। अक्सर मानते हैं कि भारत ने जो जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की संविधान में, वो अमेरिका से इंस्पायर हुई थी। तो ये अक्सर जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो बात करते हैं कि कोई भी कानून पार्लियामेंट पास करती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और कानूनी तौर पर उसको रिवोक भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से नहीं बना है कानून, पर क्या पार्लियामेंट फिर दोबारा से ओवररूल कर सकती है इसको, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को? ये लगातार इस पे बात होती रहती है। पर उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप बिगाड़ नहीं सकते। ऐसा कानून नहीं बन सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर को ही हिला दे, उससे उसके साथ तिंकर करे, उसको गड़बड़ करे। तो उस बेसिक स्ट्रक्चर में ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात आती है, फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, हमारी फेडरेशन स्ट्रक्चर की बात आती है, हमारे प्रीएम्बल की बात आती है। तो ये चीज़ें हैं जिनके साथ छेड़खानी कानूनी तौर पर भी शायद नहीं कर सकते, ऐसी धारणाएं हैं। पर ये सब लगातार इंटरप्रिटेशन होती रहती हैं, जैसे प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं है, वो इन्फोर्सेबल है या नहीं है, इस पर भी बार बार अलग अलग जजमेंट आई हैं। आज की जजमेंट ये जो लेटेस्ट है वो ये है कि वो हिस्सा तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, पर वो इन्फोर्सेबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो बाकी का है वो इन्फोर्सेबल है। पर जो प्रीएम्बल है उसको तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्या अचीव करना चाहता है उस सोच के लिए 5 फंडामेंटल मुद्दे उसमें रेज किए गए। प्रीएम्बल एक ही है, उसको एक ही बार अमेंडमेंट उसमें किया गया था 1975 में। उसमें 42nd अमेंडमेंट के दौरान उसमें सोशलिस्ट एंड सेक्युलर शब्द उसमें प्रीएम्बल में डाल दिए गए थे। उसके अलावा प्रीएम्बल से छेड़खानी नहीं हुई है, और ऐसी सोच भी है कि वो तो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, उसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते। वो जो फाउंडिंग फादर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं। पर ये बात भी आप ध्यान दें थोड़ी सी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो बहस हुई थी 3 साल में, वो बहुत ही मज़ेदार। वो उसमें पढ़ने से पता लगता है कि क्या सोच थी और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना। और बहुत सी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ अभी, एक छोटी सी बात बताऊँगा कि एक प्रस्ताव उस वक्त ये भी आया था कि क्या भारत को यूनियन ऑफ स्टेट हम आज कहते हैं, क्या इसको इंडियन सोशलिस्ट इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स का नाम देना चाहिए। उस वक्त यूएसएसआर एक बड़ी उदाहरण थी कि यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की। तो वो सोशलिज्म की बात एक प्रस्ताव में आई थी, पर वो उस वक्त पारित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें वो नाम नहीं रखना, हमें यूनियन ऑफ स्टेट और भारत नाम रखना है इसको। तो ऐसी चीज़ें उस वक्त बहस में आई और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। पर वो जो उस वक्त बहस छिड़ी थी, उसके कई बहुत से मुद्दे बाद में उभरते हैं, सामने आते हैं। और एक ये जैसे 42nd अमेंडमेंट में प्रीएम्बल का भी अमेंडमेंट हुआ, उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड उसमें डाल दिया गया। डॉक्टर साहब, 2 सवाल मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि समय हमारे पास कम हो जाएगा। मैं चाहूँगा संक्षिप्त भी रखिएगा। एक तो ये, जैसे आपने कहा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात आपने की, कनाडा के लिहाज से भी अगर देखें, कनाडा में माफ़ करना, प्रोविंसेस के पास अधिकार ज़्यादा है। क्वेबेक कहता है कि मैं अलग होना चाहता हूँ तो रेफरेंडम करा लो, और सरकार कहती है फेडरल गवर्नमेंट के करा लो आप रेफरेंडम। क्या भारत में ऐसा प्रावधान है, अगर कोई स्टेट कहे कि मैं अलग होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ और इसके ऊपर रेफरेंडम हो जाए, तो क्या स्टेट के पास वहाँ पे अधिकार है अलग होने के लिए? हमारे यहाँ वैसे मैंने अभी कहा, मैं छोटी बात नहीं कहूँगा, जैसे आपने कहा कि यूनियन ऑफ स्टेट का नज़रिया हमारे यहाँ है। तो यूनियन जो है वो उसके पास केवल अधिकार है कि चाहे वो अंदरूनी हमारी सीमाएं हों, इंटरनल बाउंड्रीज जो प्रोविंसेस की हैं, या फिर एक्सटर्नल बाउंड्रीज हों भारत की, उसमें फेरबदल करने का जो हक है, जो ताकत है, वो केवल यूनियन गवर्नमेंट के पास है। हालांकि इसमें ये जरूर याद रखना होगा कि भारत बहुत ही डाइवर्स सोसाइटी है, इसलिए उसको नज़र में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल शेड्यूल्स ऐसे डाले गए हैं जिनमें अलग अलग हिस्सों में कई बार ऑटोनॉमी की बात की गई है। स्पेशल नागा हिल काउंसिल बना दिया, जब कोई अलग ऑटोनॉमी की बात हुई। बहुत बड़ी उदाहरण तो जम्मू एंड कश्मीर की थी,
370 जो आर्टिकल है उसमें लेकर और 35 है ये आर्टिकल में। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्लेक्सिबिलिटी की जो हमने शुरू में बात की वो क्रिएट किया गया कि यूनियन जो है वो कुछ ख़ास तबकों में, कुछ लोगों को, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, कुछ राज्यों को, प्रोविंसेस को ये इस तरह की ऑटोनॉमी दे सकती है। पर क्या रेफरेंडम हो सकता है? वो ताकत शायद हमारे यहाँ केवल स्टेट को है, जो यूनियन है, जो फेडरल गवर्नमेंट है। और हमारे यहाँ मानते हैं कि जब आप इतने रेगुलरली इलेक्शन करवाते हैं तो इलेक्शन में रेफरेंडम की आवाज़ तो आ ही जाती है। और हमारे यहाँ तो इंडिया इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन इलेक्शंस, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं और यूनियन इलेक्शन होते हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन लगातार होते हैं। हमारे यहाँ तो लगातार रेफरेंडम होता ही रहता है। अच्छा, मॉडर्न इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल आप उसमें देखते हैं जो आज का भारत है? किसी भी मुल्क, किसी देश की जो है वो सोल जो है, जो जान है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन यदि आपका कामयाब है तो देश कामयाब है। तो मॉडर्न भारत की जो एक तरह से फाउंडेशन रखी गई है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडर, जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही रखी गई। इसीलिए आप देखें कि प्रियम्बल में इतने ज़ोर शोर से लिबर्टी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं कि ये चीज़ें भारत को जोड़ के रखेंगी। ये चीज़ें भारत के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। सबसे पहले बहुत से पश्चिमी देशों में ये सोच भी उस वक्त आ नहीं रही थी जब भारत ने, जिसको यूनिवर्सल सफरेज जिसको कहते हैं, अडल्ट फ्रेंचाइज, हर किसी अडल्ट को वोट देने का अधिकार, किसी भी जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार दिया कि जो जनता है वो सॉवरन है भारत का। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने तय किया। और ये मॉडर्न इंडिया की आप देखें कि फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है कि दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो। करीब 800 मिलियन लोग वोट करने जाते हैं, पर आज तक वो लोकतंत्र बना हुआ है। भारत के पड़ोस में ही देखें, जो उस वक्त आज़ाद हुए थे, हमारे साथ हुए थे आज़ाद पाकिस्तान, कितनी उथल पुथल हुई इन सब देशों में। अफ्रीका में देख लें, लैटिन अमेरिका में, दुनिया भर में लोकतंत्र जो है वो बहुत सी मुश्किलों से निकले हैं, जब कई बार डूब गए, कभी उभर गए वापस। भारत का लोकतंत्र लगातार बना हुआ है। चुनौतियां आई, मुश्किलें आई, पर लोकतंत्र बना हुआ है। और जितने भी ताकतवर बड़े नेता हों, जब जनता ने उनको नकार दिया तो उनको छोड़नी पड़ी गद्दी। तो ये मुझे लगता है आज़ाद भारत की, जो मॉडर्न भारत की फाउंडेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ साफ नजर आती है। डॉक्टर साहब, आपने प्रियम्बल के कुछ बातों का जिक्र किया, खासतौर से सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की जब बात करते हैं, चाहे आज मीडिया के ऊपर या पार्टीज़ के द्वारा हिंदुत्व की बात की जाती है, इस्लामिक रिफॉर्म्स की बात की जाती है, कुछ भी, अगर धर्म को थोड़ा सा परे रखें, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य की अगर बात की जाती है, सेकुलरिज्म हो गया, या दूसरी तरफ से आपने इक्वालिटी की बात की, लिबर्टी की बात की, इनके अलावा संविधान में क्या यूनिकनेस है, जो कुछ की फीचर्स अगर आप बता सकें? मुझे लगता है एक नहीं, बहुत से की फीचर्स हमारे हैं जो हमारे संविधान को बहुत ख़ास बनाते हैं एक तरह से। एक तो मैंने जैसे कहा कि इतना विस्तार में उसमें सब चीज़ को उतने लिखा गया है कि उसमें कन्फ्यूजन की या इंटरप्रटेशंस की जो स्पेस है वो कम हो जाती है। सारी चीज़ बड़े तरीके से समझाई गई है। और उसके अलावा आप देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र नहीं था हमारे भारत में। तो एक बार फिर 1984 में एंटी डिफेक्शन लॉ जब बना गया तो वो हिस्सा बन गया कॉन्स्टिट्यूशन का कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, क्योंकि भारत में तो जो सरकारें हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के तरीके से चलती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक नया एक तरह से उसमें जोड़ देना पॉसिबल हुआ। ये इसलिए कि वो उसको अमेंडमेंट करने के तरीके बड़े विस्तार से बनाए गए हैं कि किस तरह की अमेंडमेंट कैसे की जा सकती है। 108 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुकी हैं। So this what makes it more flexible. It's very flexible। तो आप जैसे जैसे आपकी चुनौतियां बदलती हैं, आपकी ताकत बदलती है, आपकी सोच बदलती है, कॉन्स्टिट्यूशन लचीला है, इसीलिए ताकतवर है। और इसलिए उसको लगातार अपने साथ लेकर आगे बढ़ना, सर्वसम्मति से सारे लोगों को साथ लेकर, ये संभव है। मुझे लगता है ये बड़ी ख़ास बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यदि वो बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता तो शायद कई देश ऐसे हैं जो 12-12, 15-15 कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके हैं। तो क्या इसको ऐसे माना जाए कि भारत के बढ़ने के साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी बढ़ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का सबसे पहले जो नज़रिया है वो बदल जाता है। जो 1947 में हम इक्वलिटी की बात करते थे और जो हम आज इक्वलिटी की बात करते हैं, उसके तौर तरीके अलग हैं।
तो एक तो बात वही है, उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके अलग हैं। दूसरा ये कि हाँ, कुछ हद तक कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप अमेंडमेंट करके, जैसे एक बड़ी अच्छी उदाहरण है कि फंडामेंटल राइट्स तो थे, पर 42nd अमेंडमेंट में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज भी उसमें डाल दी। अधिकारों के साथ फर्ज भी डाल दिया। फर्ज भी आपके क्या हैं आपके देश के प्रति, ये भी उसमें डाल दिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार एक तरह से इवॉल्व करना, जैसे भारत इवॉल्व हो रहा है, उसके साथ ये पॉसिबल है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारत का संविधान जो है वो आज भी सारे भारत को जोड़े हुए है। वी द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल कहा जाता है, तो क्या लोग ही हैं जो संविधान के रक्षक हैं या रखवाले हैं? संविधान में ये सबसे पहले शब्द हैं ही यही, वी द पीपल, मतलब हम खुद भारत के जो लोग हैं अपने आप को दे रहे हैं ये संविधान। तो संविधान में सॉवरन माना गया है भारत के नागरिकों को, भारतीय लोगों को। जनता जो है वो सॉवरन है भारत की, अपने आप को वो पेश करती है इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही चुने हुए प्रतिनिधियों को ये ताकत देती है कि वो भारत को गवर्न करें कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से। तो जनता ने, आपने देखा, बार बार दिखाया है। हमारे यहाँ कई बार ऐसे आप देखें कि पोल सर्वेज होते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट आके बात करते हैं टेलीविजन पर जो नतीजे इलेक्शन के हैं वो सब कुछ, चुनाव के नतीजे हैरान कर देते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल और 1 मिनट में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। कई बार मीडिया पे आता है कि संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, बार बार ये बात आती, खबरों में आती, संविधान की धज्जियां। क्या वाकई कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनसे संविधान की धज्जियां उड़ जाती हैं, या कोई प्रावधान है जिसमें कि किसी को अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है? यही मुझे लगता है कमाल की बात है भारत के संविधान की, कि वो आज़ादी देता है कि आप ये भी कह सकें कि धज्जियां उड़ा दी गई कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये आज़ादी क्या सारे कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं? मुझे नहीं लगता दुनिया के ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन नागरिकों को ये अधिकार देते हैं कि ये कहें कि संविधान की धज्जियां उड़ा दी। पर ये लगातार बना हुआ है, भारत का लोकतंत्र बना हुआ है, लगातार चुनाव होते हैं जिसमें बड़े बड़े नेता हटा दिए जाते हैं। तो ये तो ताकत ही है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की। और आज हम बात कर रहे हैं 74वें साल में कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, तो ये तो उसकी ताकत दिखाती है। और मैं फिर से कहूँगा, उसके लचीला होना ही उसकी ताकत है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका, आप आए हमारे स्टूडियो में स्पेशली, और आके आपने हमसे बातचीत की। हमें पता है कि मिड ऑफ द ईयर तक आप वैंकूवर में ही हैं, और चाहेंगे कि कुछ और जो इस तरह के इंटरेस्टिंग भारत और कनाडा के साथ कुछ जुड़े हुए रिश्ते हैं उनके ऊपर भी, जैसे कल मैं आपके बारे में पढ़ रहा था यूएस और चाइना के बारे में, आपने एशिया, एक स्टार मैगजीन है, एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आपने बहुत अच्छा उसके बारे में आपने अपने विचार दिए हैं। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में कुछ ग्लोबल अफेयर्स के बारे में भी आपसे बातचीत की जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।